बात करें तो इमरान के फैन अभी वेट कर रहे हैं इमरान को देखने। उनको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा. आई एम डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट. ओके इमरान, इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस के बाद कितने बदलाव आपने आएगा और क्या लेके जा रहे हैं आप अपने साथ? क्या लेके जा रहा हूँ, जस्ट इट्स आई थिंक एज अ क्रिएटिव पर्सन आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करें, चाहे आप एक्टर हो, आप राइटर हो, आप डायरेक्टर हो, सिनेमाटोग्राफर हो, अल्टीमेटली यू आर वर्किंग बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन अ क्रिएटिव कैपेसिटी. और अगर आप किसी ऐसे बंदे की बात सुने जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, 52 ईयर से वो काम कर रहे हैं, यू स्टार्ट टू रियलाइज लिटिल बिट कि आपको किस चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए और किस चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए. which I found he was so effortless and so unconcerned with कि लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे, उसके बारे में क्या सोचेंगे. It is always about the personal craft कि as an artist मैं क्या करना चाहता हूँ. The fact that after so many years of working he's held on to that is beautiful. As you said, your fans are waiting for your comeback, and you said that you will make them wait a bit more. Recently, like there were reports that Aamir is taking some serious interest in your careers and your choices that you are making in the future. So how true are them, and how are you? Currently, no, I'm not really discussing with him. He's a little busy with Dangal. My career largely, I've always made my own choices for better or for worse, and I continue to do that. So how are you keeping yourself busy these days? Yeah, I have a 2-year-old daughter. I don't need anything to help keep me busy. I would like 5 minutes of break sometimes. Okay, मैं मोस्ट कि एक बड़े कलाकार जो चलो मान लिया दिग्गज है, लेकिन कुछ कहीं आप डिसएग्रीमेंट करते हैं कि चलो यार ये चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ लेकिन वो तो बिल्कुल ही गलत थी या फिर मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. आप कभी बात कर पाते हैं इस बारे में आमिर सर से या फिर जो भी दूसरे लोग हैं? I'm sorry, मैं समझा नहीं. जैसे कोई बहुत बड़े दिग्गज कलाकार हैं जैसे आमिर सर हैं, अमिताभ बच्चन हैं, उनकी हर बात पे एग्रीमेंट हाँ, किसी इंसान के साथ यू कैन नॉट एग्री विद एवरीथिंग. ज़रूर ऐसी बातें होंगे जो लोग कहेंगे, जो लोग सोचेंगे, जो करेंगे विद जो उनके लिए शायद सही हो, जो मेरे लिए सही ना हो. ऑफ कोर्स दैट इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमैनिटी. यार आपने ऑन स्टेज कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं किया, आप दिल में था नहीं, आप पूछना नहीं चाहते थे? मुझे लगा कि इतने सारे लोग आए, कभी ना कभी मुझे मौका मिलेगा कि मैं एक्चुअली आई गॉट द चांस. मैं बैक स्टेज गया था एंड आई गॉट द चांस टू मीट हिम. आई डोंट वांट टू टेक द चांस अवे फ्रॉम समवन एल्स. हम सब एक्टर लोग यहाँ आए हैं एंड इट्स नॉट नाइस दैट यू शुड टेक प्रायोरिटी. Let someone else take the chance. Imran, जो younger lot है like Varun, Siddharth और the newcomer who has recently come in Fawad, like they are making good movies. Their performance has been appreciated and like at the same time people And are well, it should be. Kapoor and Sons Fawad was fantastic. Yes, exactly. So would you think that in this competition, that is a tough competition in Bollywood, if you take a break, then will it be a disadvantage for you also? In my entire career, I've never thought of competition because no matter how good another actor is, the only thing that can hold me back is my own work. ऐसा नहीं होता है कि भाई एक एक्टर ने अच्छा काम किया है, बस भाई सब लोग घर जाओ, अब कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है, बस go home. Then after Amitabh Bachchan, everyone should have stopped acting. No, there are still actors. If you do good work, you'll be successful. It's really that simple. You can't think of someone else is running a race. हम घोड़े थोड़ी हैं. So Imran, जब कट्टी बट्टी को उतना सक्सेस नहीं मिला, trailer was promising, everyone appreciated the trailer, but the movie didn't deliver that much at the box office. So was it very disappointing for you? It's actually easier when you are proud of the film. Katti Batti is a film which I'm very proud of, which I'm very happy with, and I think that what Nikhil made is exactly what he promised me. Sometimes people don't get what you try, and I'm okay with that. If I make a film which I don't like and that is a flop, that hurts me. I'm like यार मेरी पिक्चर थी नहीं, मुझे पसंद ही नहीं आई, फिर भी फ्लॉप हुई. That is hard to tolerate. When you make a film which you love, which you are proud of, चाहे वो कट्टी बट्टी हो, चाहे वो गोरी तेरे प्यार में हो, these are films which are very close to my heart, made by people who are very dear to me. If it doesn't work, it doesn't work. But I have no bad memories associated with it. It's made by a dear friend of mine. We have done the best that we could. It happens. Okay, lastly, how long will you keep your fans waiting for your next film? I never work on schedules, yaar. It's a creative business. You sit and you read and you see what speaks to you, what resonates with you, what excites you as a creative person. You can't say कि हाँ भाई by the 15th I must be shooting. ऐसा होता नहीं है. You have to see what speaks to you. Okay, man, there's one more question. यार मुझे बहुत भूख लगी है. जैसे कि आपने बताया कट्टी बट्टी आपको बहुत बेहद पसंद आई पर्सनली. कोई 2015 की कोई ऐसी फिल्म जो आपको लगा हो यार ये तो मतलब अटपटी थी लेकिन ये हिट क्यों हो गई, समथिंग लाइक दैट? किसी और यार if I'm honest, मैं ज़्यादा फिल्में देखता नहीं हूँ. साल में एक दो फिल्में देख लेता हूँ. जनरली when I hear very very good things फिर मैं फिल्म देखने जाता हूँ. अगर ट्रेलर से मुझे कोई फिल्म बुरी लगे then I don't go and watch it only. I don't have time to waste. Thanks guys. आमिर सर चले गए.
engaging. तो बहुत मज़ा आया है और I think it's one of the very memorable evenings of my life. I think it's always a treat to watch two great actors sit and discuss cinema, Shakespeare, and lots of other issues. It was lovely. It was really engaging and very entertaining. आमिर ने डिस्कशन में कहा कि he is not one actor who can't work with he can't work with every director. So for you as a director, would you think that you can work with Aamir in future? वो तो आमिर बताएंगे. As he said, he needs to be comfortable with the director and he needs to be on the same page as far as aesthetics and sensibilities are concerned. So it's up to him to decide. But of course, if there's a great script, then I would definitely go to Aamir. And if he agrees with my vision, I'm sure we'll be able to work together. सर एक मूवी भी आ रही है सलमान खान के साथ इंडो चाइना के बारे में बताएंगे सर क्या है वो लोग अगर कुछ बताना चाहेंगे? जी अभी जुलाई में मैं एक फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ सलमान के साथ. उसमें है एक बैकड्रॉप इंडो चाइना बैकड्रॉप और उसके ज़्यादा फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते बिकॉज नेक्स्ट मंथ हम फुल अनाउंसमेंट करेंगे. बस इतना बता सकते हैं कि जुलाई में शुरू कर रहे हैं और लद्दाख में शूट कर रहा हूँ मैं पहला शेड्यूल. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मेमोरेबल रहा जो अभी भी आप लेके जा रहे हैं अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शेयर करना? मेमोरेबल आई थिंक यही है कि अब मतलब एक 2 घंटे के लिए आप बैठ के आप सुन सकते हैं 2 बेहतरीन एक्टर्स अपना क्राफ्ट डिस्कस कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस डिस्कस कर रहे हैं, फिल्म्स और थिएटर के बारे में. उनसे अलग अलग सवाल पूछे ऑडियंस ने कि वो कैसे अपने क्राफ्ट को अप्रोच करते हैं. तो टू बी एबल टू हियर सच टैलेंटेड आर्टिस्ट टॉक अबाउट द क्राफ्ट इज वाज अ ट्रीट. आगे चल के ऐसे एक्सपीरियंस के कुछ क्वेश्चन जो आपके दिल में है दिमाग में वो आप पूछ पाते हैं? मेरे दिल में एक सवाल था जो वैसे किसी और ने पूछ लिया था तो वो डिस्कस हो गया था. मैं बस यही पूछना चाहता था कि कभी कभी एक्टर्स एक कैरेक्टर के बारे में एक कुछ सोचते हैं, उनके जहन में एक अपना कैरेक्टर क्रिएट करते हैं और कभी कभी वो अगर डायरेक्टर के साथ क्लैश करे तो फिर वो क्या करते हैं, अपने आप को रीअलाइन कर सकते हैं और फाइनली डायरेक्टर के विजन को सकम करते हैं या फिर उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. बट वो उसके बारे काफ़ी डिटेल में उन्होंने बात करी. अगर शेक्सपियर की बात करें तो कहीं ना कहीं एज अ डायरेक्टर का आंसर आपको ही देना हो तो आप इसका आंसर खुद कैसे देंगे? नहीं, मैं एज एन एक्टर तो नहीं दे सकता हूँ लेकिन हाँ अल्टीमेटली फिल्म में तो आई थिंक द डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप. तो जैसे उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली एज एन एक्टर दे हैव टू गिव व्हाट द डायरेक्टर वांट्स और कभी कभी उनको दिक्कत हो जाती है अगर बिल्कुल ही विजन्स में बहुत एक डिस्पैरिटी हो. लेकिन ज़्यादातर अगर वो डायरेक्टर के साथ एक टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस देन आई थिंक दे एबल टू क्रिएट द सेम विजन. आपको अगर मौका मिले शेक्सपियर के ऊपर मूवी बनाने जी. कौन सा एक्टर आप चूज करेंगे? वो तो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है. जैसे मैंने कहा कि मतलब शेक्सपियर तो वैसे भी उनकी जो बॉडी ऑफ वर्क है सिर्फ एक शेक्सपियर को की कहानी को आप अगर अडेप्ट करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके वर्क को अडेप्ट कर रहे हैं. उनकी हर ड्रामेटिक सीन में कहीं ना कहीं एक शेक्सपियर का एक इन्फ्लुएंस है क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है, सब पढ़ते हैं और जैसे भी बात हो रही थी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस शेक्सपियर का रहा है सारे क्रिएटिव आर्ट्स में. तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमेशा वो इन्फ्लुएंस रहता है और हमेशा रहेगा. एक नाम अगर जानना चाहेंगे आपके हिसाब कौन सी फिल्म बनाना चाहूँगा? मैंने इसके बारे में तो सोचा नहीं है लेकिन मैं जो बनी है जो विशाल ने बहुत बेहतरीन 3 फिल्में बनाई हैं, ओमकारा, मकबूल, हैदर, वो तीनों आई थिंक एक बहुत ही ड्रामेटिक मटेरियल है और एज अ फिल्म मेकर आई एंजॉयड वॉचिंग देम. कभी से थोड़ी किसी प्ले को लेना उसको आधा काम तो पहले से ही कहानी लिखी गई है सिर्फ आपको पात्र रखने हैं और लोकेशन बतानी है? नहीं ऐसा नहीं होता है. एक जब डायरेक्टर एक स्क्रिप्ट को लेता है या किसी स्टोरी को लेता है एक विजन लाता है. सिर्फ एक कहानी लेना आसान नहीं होता कि आपने कहानी ले लो 2 कैरेक्टर्स डाल दिए. एक हर चीज़ में एक डायरेक्टर एक विजन लाता है, किस तरीके से वो कैरेक्टर्स को पिच किया जाएगा, किस तरीके से वो लोकेशंस क्रिएट करे जाएंगे. स्पेशली अडेप्टेशन में विशाल ने जो किया है वो अडेप्टेशंस हैं, वो डायरेक्ट लिफ्ट नहीं है. तो ऑब्वियसली इसमें एक बहुत सोचना पड़ता है कैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में उसको, जैसे हैदर को उन्होंने कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में सेट किया है तो उसमें एक बहुत सोच समझ जाती है. थैंक यू. क्या लेके जाना है आपके साथ और कैसे? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर यहाँ मैकलन को सुनना और आमिर सर को सुनना और उनके एक्सपीरियंस, उनके एक्टिंग के टेक्निक्स, तो बहुत कुछ सीखने को मिला. मैंने काफ़ी क्वेश्चंस किए उनसे जो उन्होंने बहुत ही फ्रीली और ऑनेस्ट से जवाब दिया. तो आई लर्न अ लॉट एज एन एक्टर. आपको लगा इतनी बड़ी कन्वर्सेशन थी और आप जा पाते या आप उनसे पर्सनली कुछ पूछ पाते या कुछ? नहीं, उनके बाद बैक स्टेज में उनसे बहुत बात की है. उसके बाद अभी हम फिर से मिलने वाले हैं डिनर पे. सो आई हैव लॉट ऑफ टाइम टू आस्क हिम लॉट ऑफ क्वेश्चंस. जब 2 महान कलाकार मिल जाते हैं आपस में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं तो एज एन ह्यूमन बीइंग आपको कैसे लगे? अच्छे एक्टर तो नो डाउट ऑफ कोर्स ही इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड ही इज़ वेरी रियल. यही उनकी सबसे कमाल की बात है कि वो बिल्कुल भी एक्ट आउट नहीं कर रहे हैं, वो जैसे हैं वैसा ही दिखा रहे हैं. और ये दोनों की है. आई थिंक आमिर सर और रियान सर दोनों का ही ऐसा है. किसी से पूछा हुआ कोई क्वेश्चन है उसका आंसर मिलने के बाद एक्टर में कितना चेंज आ जाता है? जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस किए
कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने यू नो एज एन एक्टर आप सोचते रहते हो, उलझते रहते हो कि क्या ये ठीक है या नहीं है, बट व्हेन यू आस्क समवन हु इज अ सीनियर, हु इज एक्सपीरियंस्ड इनफ, तो एक पर्सपेक्टिव उनका मिलता है, तो आप यू नो दिस ऑलवेज हेल्प्स यू टू फाइंड आउट द आंसर. अपकमिंग तो अभी मोटवानी सर की फिल्म है, वो खत्म हो गई है. फिर न्यूटन है, वो भी खत्म हो गई है. लव सोनिया एक फिल्म है जो कल ही खत्म हुई है. और या आई थिंक लॉट ऑफ वर्क. लॉट ऑफ वर्क, यस. थैंक यू. Well, I've made a new friend. Yes. Look here. Yes. It's not many people come to Mumbai and get straight to meet Mr. Khan. So wonderful. I mean, when you go abroad, you either look at the buildings or you get to meet the people. I seem to be meeting the people, and I'm very happy about that. Tell us about today. Again, this wonderful conversation between the two of you. Just what can we look forward to? We're going to tell some jokes, and we're going to discuss clothes, and I don't know what we're going to talk. Well, I'm looking forward to listening to Sir Ian tell us some of his experiences, and I'm hoping to learn from him. Yep. And this is, of course, an incredible year, 400 years of Shakespeare. Yes. Just sort of coming here, sort of starting this all off here, what do you want audiences to sort of know the most? Well, not to think of Shakespeare as history. Yes. Not to think of him as someone from the past. He's still very much alive through the characters and the words and the stories. Yes. And that's true for me. And I would like as many people as possible to get in touch with Shakespeare if they can. And if they can get in touch through movies, then that's wonderful. And you make some wonderful Shakespeare films in India, of course. Yes. Have you seen and enjoyed any of them? I Any in have, yes, particular? and, very much so. And of course, they don't have Shakespeare's words, which I'm rather keen on, but that's all right. You know, you can do with Shakespeare whatever you want. Of all the roles that you have played and plan to play from on stage, which character has been the most satisfying to you? It's an unfair What would you question. say? It's very difficult to just say that. I don't know. I've had, I think, about 350 jobs in my life playing parts. And there have only been two that I haven't enjoyed, and I won't talk about those. So everything else, I've loved doing. That's pretty good average. That's not bad. Are you going to pin him down on this? No, you know what? We should go in because All right. you're running out of all my questions. Okay, so